नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कहते हैं काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हाँ, कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत क्षेत्र, जिंदगी में नैतिकता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसे समृद्ध, संतुलित और आनंदमयी बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार एंड हेलो। A very good morning to one and all. Respected ED Amanda, our chief guest, an eminent personality, a dynamic trainer and counselor, an institution in himself, Professor E.V. Girish, all GTMs, colleagues, representatives from unions and associations, brothers and sisters of Prajapita Brahmakumari, CISF personnel, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful and beautiful morning, which brings so many special people like you. It gives me immense pleasure to extend my warm welcome to all the Nalgonians of Corporate Office, Smelter and Mines who have joined us virtually. Ladies and gentlemen, it is said that learning is a continuous process and there is a lot to be learned and relearned. We all know that Indian culture plays an important role in inculcating values and ethical values. It imparts human values along with holism. To address these values of ethics and governance, we have amidst us an eminent speaker and trainer whose very presence has motivated and reinforced us to think ethically. सर के लिए महक उठा है घर आंगन जब से आप पधारे हैं, महक उठा है घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। जी हाँ, हमारे बीच ऐसे हस्ती हैं जो अपने व्यक्तित्व से हमें मार्गदर्शन करेंगे। So ladies and gentlemen, please put your hands together for Professor E.V. Girish, a dynamic trainer and counselor with passion for excellency and creativity. May I request our GM Vigilance, Sri Sadashiv Patri sir, to accompany our chief guest, Professor E.V. Girish, and our ED Amanda, Sri Sushil Kumar Padi, onto the dais, please. Ladies and gentlemen, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। Appreciation, I request him to present an anniversary to Professor Girish. Thank you, sir. Please be seated. Before I invite today's eminent speaker, a brief introduction about him. A trainer with over 25 years of experience in imparting behavioral training programs for corporate houses, educational and social institutions. He did his MBA in marketing and finance and PG diploma in psychoneurobics in 2008. He is an international transformational speaker and success coach with demonstrated ability to function effectively in an adverse environment as well as trained with diverse learning styles. He is a well-known trainer across industries for his unique style and ability to inspire people. He has conducted training programs at ISRO, NPCIL, IIT Madras, IIT Roorkee, Patna, JNU, National Institute of Design, Indian Army, L&T, ICSI, ICI, General Motors, Tata Power, to name a few. Professor Girish is associated with Prajapita Brahmakumari, Ishwarya Vishwavidyalaya for the past 25 years, an international socio-spiritual organization which has NGO status with UN and consultative status with UNICEF and ECOSOC.
He also served as a Rotaract president and is now a Rotarian. Internationally certified user of Thomas PPA HJA, a personal profile analysis provides behavioral assessment of an individual. Keynote speaker at the 24th Rotary District Conference held at Colombo along with international speaker and Miss World Rolene Strauss at South Africa. Professor Girish served as a faculty in Mumbai University for more than 11 years. Well, the list is on and on. As his profile speaks, I can feel that everyone in this auditorium is eagerly waiting to hear from him. Sir, without wasting any time, I would request to take over the microphone. Sir, it is all yours. Can I sit and talk? You want me to stand and speak? Is it okay? Okay. I want you to repeat this word after me. Om Shanti. थोड़ा प्यार से कहिए. मुस्कुराकर कहिए. मुस्कुराकर. आपको देख के मुझे टेंशन हो रहा है. वो जो स्नेह रूपी वैल्यू और एथिक्स है ना, वो थोड़ा सा चेहरे पे और मुस्कुराहट लाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. थोड़ा जोश, उमंग, उत्साह, एनर्जी से कहिए ओम शांति. वंडरफुल. नमस्ते. रिस्पॉन्ड करिए. हाथ कौन जोड़ेगा? भाई थोड़ा डिफिकल्ट है. नमस्ते. गुड मॉर्निंग. इज योर मॉर्निंग गुड? Wonderful. My morning is absolutely fantastic because I'm with a beautiful, divine, energetic, successful Nalco family. And thanks to ma'am for that very sweet, lovely, beautiful introduction. And the way you started, you are a fantastic, what you call, program coordinator, the way you have done it. Maybe I want to learn from you the way you put forth, set the context. मैडम के लिए एक बार ताली बजाएंगे. दोस्तों अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे. बीच बीच में मैं आपको ताली बजाने के लिए कहूँगा, तो आप बजाएंगे ताली? बस. उसका उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं. एक उद्देश्य ये रहेगा कि कम से कम आपके ताली से आजू बाजू वाला जग तो जाएगा. क्योंकि जब मैं भाषण करता हूँ तो मुझे भारत के लोग बड़े प्रिय लगते हैं, विदेशी भी बहुत अच्छे लगते हैं, और इंडियन ऑडियंस इज़ द बेस्ट ऑडियंस. एंड जब मैं बातें करता हूँ तो मेरे और मुझसे अच्छा जो स्पीकर्स होते हैं, ओरेटर्स होते हैं, हमको पता ही नहीं चलता भारत की जनता सुन रही है कि सो रही है. क्योंकि भारत के लोगों में काबिलियत है, वो आंखें खोल के सो सकते हैं. आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, नालको में ऐसा नहीं है, मैं तो द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ. आई हैव अ रिक्वेस्ट. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लीड अ वेरी एथिकल लाइफ. मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इट. But yes, when it comes down to behavioral aspect, when it comes down to ethics and governance, definitely yes, I'll try my best to share few of my insights, and in the process I want you also to share your insight. शायद मेरा जितना उम्र होगा उतना आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा लाइफ का. मैं बहुत छोटा हूँ आपसे. मैं यहाँ कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, just to interact. I'll be a facilitator for this particular topic. And I want each one of you to also think about it, and maybe you can challenge me of what ideas I am posing. I'll be very happy for it. इसका अर्थ ये है कि मैं ही इस विषय का एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है. आप भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, और हम सब मिलकर आज के इस विशेष दिन में इस विषय को बहुत अच्छी तरह इवॉल्व करें. डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम इस विषय को देखेंगे तो वी मे हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियन, एंड देन वी ट्राई टू इवॉल्व व्हाट एग्जैक्टली एथिक्स, मोरालिटी, और फॉर दैट मैटर गवर्नेंस इज ऑल अबाउट. मेरा जितना आइडिया है, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? आप लोग बातें करेंगे? हाँ या ना?
एक बार मैं ऐसे ही कह रहा था, मैंने ऑडियंस को पूछा आप लोग बातें करेंगे, तो एक भाई साहब ने कहा भाई साहब घर में मौका नहीं मिलता, यहीं पे हम कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है ना। मैडम करने नहीं देती है हमको बातें, ठीक है ना, आई मीन ऑन अ लाइटर वे। सो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ बातें करें और मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। सवाल जवाब का सिलसिला का आधार ये नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू क्वेश्चन योर इंटेलिजेंस, योर एक्सपीरियंस, योर moral standards, is just to create a lot of liveliness in the talk today. ठीक रहेगा? In the process, I want you also to pose a lot of questions to me and I'll try my best to respond to it in the best possible way. उद्देश्य ना मुझे आपको हराना है ना आप मुझे हराना है, बहुत अच्छी तरह ये कल्चर होगा, मुझे नहीं पता for what reason it was missed out. Before the mic was handed over to me, she could have made a very categorical statement. कृपया करके अपने डैश को डैश मोड में रखिए। क्या था वो? क्या? अब आपने बोल दिया था? नहीं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। मुझे तो पता ही था माही मेरे पास आने वाला है, अगर मिस हो गया हो तो मैं तो जरूर शेयर कर सकता हूँ। हाँ, तो आपने बताया नहीं क्या करना है? डैश को डैश मोड में रखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है। मोबाइल को साइलेंट मोड में रखिए, वो एक एथिकल स्टैंडर्ड है, यस और नो? वो भी एक पार्ट ऑफ एथिक्स और डिसिप्लिन। ये तो मैडम को कहना था, ठीक है ना। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसे सभाओं में या बैठक में कि कृपया, फिर लिखा भी रहता है कीप योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड ड्यूरिंग मीटिंग, क्यों ऐसा कहा जाता है? इट इज एक्सीडेंटल ऑल्सो। सो उससे बाकी लोग शायद उस वक्त डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखें। मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वो तो मैडम को कहना था, मेरा आपसे अनुरोध है कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में ना रखें, बजने दीजिए। जब मैं ये कहता हूं ना, तो पहली बार ऑडियंस है ना मुझे सीरियसली गंभीर रीति से आंखें फाड़ करके देखती है और वो मन ही मन सोचते हैं टकलू तू तो वाइट वाइट पहना, इतना लंबा चौड़ा, मैडम ने सुना है, लेकिन अंदर की बात है कि तू हमारी जैसा है, ठीक है ना। हम सब उल्टा ही करते हैं, जो वास्तविकताएं और रियलिटीज होती है, आई मीन वी ट्राई टू नॉट फॉलो इट। आई मीन एट टाइम्स मे बी आई वांट टू बट आई एम नॉट एबल टू। Governance is the ability or the process of doing the right. Ethics is the right or the wrong. And governance becomes a part. How are you conducting yourself with those moral and ethical standards? ठीक है? तो कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में नहीं रखिए, बजने दीजिए। मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर संभव हो सके, maybe for the next 1 hour, जब तक मैं आपसे इंटरेक्ट करूं, 1 hour is too long a period, maybe for the next 10 minutes, कृपया करके अपने मन को साइलेंट मोड में करिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस इधर है, ये तो ट्रिगर है, ये तो कॉज है। What is causing Girish not to follow certain ethical standards in life? Be it my family, be it me, that individual, be it my professional life here in Nalco, be it my social life, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ? क्यों मैं नेगेटिव चीजें कर रहा हूँ? क्यों मैं आवेश में आता हूँ? क्यों मैं क्रोध करता हूँ? क्यों मैं परेशान हूँ? क्यों मैं, मेरे को किसी और के लिए वेंजेंस, नेगेटिविटी, हेट्रेड अच्छा नहीं लगता है? क्यों हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं? क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? जीवन का उद्देश्य तो ये है ही नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो शांति, सुख, आनंद, भले ब्रह्मा कुमारी इसमें रहो या ना रहो, उद्देश्य तो वही है ना। भले व्हाइट पहनो या नहीं पहनो, यस और नो? What is the purpose of life? और ऐसा तो नहीं है पर्पस ऑफ लाइफ को नाल्को ने डिस्टर्ब कर दिया है। भाई नौकरी के चक्कर में हम जीवन को ही डिस्टर्ब कर जा रहे हैं।
अनफॉर्चुनेटली आज ऐसे ही है, वास्तविकता तो यही है। क्यों नौकरी कर रहे हैं, क्यों बच्चा पढ़ रहा है, क्यों शादी कर रहे हैं, क्यों बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्यों घर बना रहे हैं, क्यों गाड़ी खरीद रहे हैं, क्यों सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों अच्छा पहन रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? एंड सॉरी, दिस इज नॉट अ फिलोसॉफिकल क्लास। मैं आपको बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस दूंगा उसका। लक्ष्य क्या है? चलिए आपसे मैं बहुत सिंपल, मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। इट वॉज इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑल गर्ल्स। मैंने उनको पूछा, बेटा आपको कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? गर्ल्स के पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, अनलाइक वी। तो एक बच्ची ने कहा, अंकल जीन्स एंड टी शर्ट अच्छा लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा क्यों? वाई जीन्स एंड टी शर्ट ओवर समथिंग एल्स? मे बी इट कुड बी अ साड़ी और सलवार कुर्ता और वॉट एवर, जो भी गर्ल्स के लिए वेरियस ऑप्शंस है। तो पता वो बच्ची ने इतना वंडरफुल जवाब दिया, बोला अंकल कंफर्टेबल रहता है, झंझट नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीन्स एंड टी शर्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। हम सबको कंफर्टेबल घड़ी चाहिए, कंफर्टेबल मोबाइल चाहिए, कंफर्टेबल कुर्सी चाहिए, कंफर्टेबल नौकरी चाहिए, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, सचमुच बुरा मत मानिएगा। कंफर्टेबल पत्नी चाहिए, कंफर्टेबल पति चाहिए, कंफर्टेबल बच्चे चाहिए, कंफर्टेबल सासू मां चाहिए, कंफर्टेबल बॉस चाहिए, कंफर्टेबल ऑफिस चाहिए। यस और नो? या थैंक मैं नहीं लेता, थैंक यू सो मच। यस और नो? ओके। मैंने वो बच्ची से कहा, आपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया, अब आप कंफर्टेबल। गवर्नेंस एंड एथिक्स, कैन इट बी कंफर्टेबल? नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। वो तो फिर हरिश्चंद्र और गांधी जी की आत्माएं करें, हम तो साधारण है, हमसे नहीं हो सकता। लेकिन कंफर्टेबल उनको भी चाहिए था, आपको भी चाहिए। वहां गांधी जी को अनकंफर्टेबल और आपको कंफर्टेबल, ऐसा तो नहीं है ना। He also wanted India to be a comfortable land wherein you and I can freely, democratically, हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ को एग्जिबिट कर सकते थे। दैट इज व्हाट ही स्ट्रगल्ड फॉर। और राइट था रॉन्ग था, वी कैन डिस्कस इट पॉलिटिकली समटाइम लेटर। कंफर्टेबल यस और नो? कुछ तो बोलिए। फैंटास्टिक। मतलब जबरदस्ती यस नेस नहीं करना। मानव मनोवृत्ति, और विशेष उसमें भी भारतीय मनोवृत्ति, इंडियन साइकोलॉजी, आपका और मेरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियंस, आई एम अ प्राउड इंडियन। हमको अगर 5 रुपए का पेन भी खरीदना होगा ना, ऐसे ही उठाकर 5 रुपए दे के जेब में रख के वापस नहीं आते, लिख के जरूर देखते काम कर रहा है कि नहीं। 5 रुपए को भी स्क्रूटनाइज कर दिया जाता है आप लोग। Ethics and governance is not worth 5 rupees. It's too heavy a price that we are paying for ourselves, for the society, and for each and every person whom we are interacting with. And believe me, I don't know whether PD sir will like it or not. I am not here for NALCO. मुझे NALCO से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे लेना देना है। आपका जिंदगी, आपका 24 घंटा, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी मन की शांति, आपका जीवन का उद्देश्य। माफी चाहता हूं सर, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बुलाया NALCO ने और तो उसी के लिए नहीं बात कर रहा। क्या है NALCO? Each one of you is NALCO, right? मुझे याद आता है, मैं टाटा स्टील का प्रोग्राम था, काफी समय की बात है, करीब 15-20 साल की पहले की बात होगा। उस समय हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। मैं तारापुर में उनके फैक्ट्री प्लांट में था। वी हैड बोरीवली, वी हैड बैंगलोर, वी हैड हैदराबाद ऑफिसेस कनेक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आज यहाँ चल रहा है। अच्छा, जो भी ऑनलाइन में जुड़े उनको भी बहुत बहुत स्वागत है, जो भी हमें वाया डिजिटल मीडिया देख रहे हैं। सो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने उनसे कहा, बातों बातों में मैंने कहा, टाटा स्टील कंपनी किसकी है? तो एक रिप्लाई आया, शेयर होल्डर्स की है। तो मैंने कहा सर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, ये तो मुझे पता चल रहा है, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स ही होते हैं, उसके मालिक। मैंने कहा इससे कोई बेहतर उत्तर हो सकता है क्या? तो किसी ने कहा, कुछ नाम बताया उन्होंने, मे बी ही और शी मे बी अ मेजर स्टेक होल्डर इन टाटा। मैंने कहा मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट आई अग्री टू व्हाट यू से। इसके अलावा कोई बेहतर उत्तर हो सकता है? और मैं बार बार कह रहा था इससे बेहतर उत्तर, बेहतर उत्तर। तो हमारे तारापुर के जो ऑफिस में
एक क्या बोलते पार्टिसिपेंट थे, उनको भनक लग गई कि गिरीश चाहता क्या है उत्तर, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा टाटा स्टील कंपनी हमारा है, और मेरी आंखें खिल गई। तो मैंने कहा सर आप एचआर के हो क्या? बोल आपको कैसे पता चल रहा है? मैंने कहा आप बातें करो, मैं बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट के हो आप, ठीक है। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो जैसे ही उन्होंने कहा हमारा है, मेरी आंखें खिल गई, तो सबने ताली भी बजा दिया। somebody could at least pacify गिरीश with the right answer, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। शेयर होल्डर्स ठीक है, इससे बेहतर उत्तर, बेहतर उत्तर, बेहतर उत्तर होता है ना। जब टीचर खुश हो जाता है तो बच्चा उत्तर देता है तो सबको अच्छा लगता है, फाइनली एक तो है जो कुड सेटिस्फाई द टीचर। जैसे ही सबने ताली बजाया तो मैंने वो एचआर प्रोफेशनल पर्सनल से कहा, मैंने कहा सर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को क्यों बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जो कहने वाला हूँ वो बुरा लग सकता है, दिल को चुभ सकता है, इट कुड रियली हर्ट यू मैसिवली। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं पहले आप गारंटी करिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे, आप जूता निकाल कर मेरे पे फेंकेंगे नहीं। बोला नहीं नहीं गिरीश जी, मैंने आपके यूट्यूब देखे हैं, आई नो व्हाट अ काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। आई मीन आई प्रॉमिस यू कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा पक्का? उन्होंने कहा यस। मैंने कहा तो जवाब दीजिए। बोला बोलिए। मैंने कहा आपकी पत्नी किसकी है? टाटा स्टील हमारा है और पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, नाल्को वो हमारा से मेरा। जहां मेरापन आएगा वहां स्नेह है, वहां सुरक्षा है, वहां फीलिंग्स है, वहां इमोशंस है। इसको मेरी पत्नी को कोई उंगली दिखाए तो मेरा तो बीपी चढ़ जाएगा। नाल्को को कोई उंगली दिखाए, इट्स नॉट फॉर नाल्को फ्रेंड्स। आपको लग रहा है ये नाल्को के बेनिफिट के लिए है, वो नहीं मैं बात कर रहा हूं। इसका सीधा बेनिफिट होता है आपके 5 फुट चेंज के शरीर को। व्हाट इज द काइंड ऑफ these values have a profound impact on your physiology। इन्हीं बीच नौकरी तो करनी ही 8 घंटा 12 घंटा जितना भी घंटे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मानव जीवन का एक इंपॉर्टेंट भाग हमारा नौकरी वाला एरिया ले लेता है। 8 घंटा पर डे, मे बी फॉर 35 years, look at calculate it, it takes a major chunk of your life। And that life is, what is the kind of emotions and feelings with which you are leading that life? Is it love? Is it passion? Is it मेरा? Is it अपनापन? क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी सफल लोग होके गए हैं, और एक दो का नाम मैं आपको गिनाता हूँ। I mean, I had the privilege of meeting them. Sachin Ramesh Tendulkar, Lata Mangeshkar, Dr. Kalam. If time permits, I'll definitely share my experience of Dr. Kalam आपके साथ। पता है लता मंगेशकर क्या कहती थी? जीती हूं जब गाती हूं, हम तो मरते हैं जब काम करते हैं। ये भी एक विशेषता देखी भारतीयों की, सब उल्टी बात पे ताली बजाते हैं। सर प्लीज बजाइए एक बार, प्लीज बजाइए एक बार ताली बंद। और जब मैं कोई भारी मतलब का पावरफुल चीज कहता हूं ना, मतलब इतना शॉक में रहते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, I mean, I really appreciate that you like it। Forget about NALCO। What is the kind of example and a sample I'm setting for my children? और आपको लगता है मैं कुछ भी पर्सनालिटी में रहूं और बच्चों को वैल्यू सिखाऊं और वो सीख जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। Who I am as a person, as an identity, that is what will reflect। And if you think you can hide that particular personality and that identity, sorry friends, it's not possible। There is some realities of certain life you just cannot fake। आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो, सारी दुनिया को चूना लगा सकते हो, पहला आप 5 फुट चेंज के शरीर को कभी चूना नहीं लगा सकते हो। You are frustrated, irritated, sulking, brooding, hopeless, helpless, not satisfied। कहाँ है ये सब? ये सब मॉरल वैल्यूज है। और जो व्यक्ति इन मूल्यों के आधार से अपने जीवन को चलाता है, प्रकृति का नियम है हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सचिन तेंदुलकर को मैंने पूछा, सर आप इतने सफल बल्लेबाज कैसे?
I mean, master blaster, you are god on planet Earth as far as cricket goes. पता है सचिन क्या कहता? 3 शब्द, I love cricket, full stop. To hell with you, तुम ब्रेटली है, तू शेन वॉर्न है, तू लसित मलिंगा है, तू मुथैया मुरलीधरन है, तुम बाउंसी पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टर्निंग ट्रैक ऑफ साउथ अफ्रीका है, स्टीव बकनर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा गलत डिसीजन पे आउट दिया था. प्लीज गो बैक एंड चेक द रिकॉर्ड. एकमात्र ऐसा बल्लेबाज इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट जिसको सबसे ज्यादा गलत डिसीजन पर आउट दिया, स्टीव बकनर ने. उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम था सचिन तेंदुलकर के साथ, पैड में लगता नहीं था, वो उंगली उठा देता था. अरे कमेंटेटर्स बॉक्स में रवि शास्त्री कहता था, आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, द रिप्ले सेड द बॉल विल नॉट इवन टच द लेग स्टंप. द होल वर्ल्ड न्यू ये गलत है. लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर मुस्कुरा करके 99 रन में, प्लीज चेक करना सचिन तेंदुलकर को 90 में 90s में कितने बार गलत डिसीजन में आउट दिया. सचिन तेंदुलकर की जगह आप और मैं होते थे तो क्या करते थे? आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो एथिकल मॉरल. अरे उसको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं, आपके 5 फुट 6 इंच के हर एक अणु कणु को सुनाई दे रहा है. यू आर अ फ्रस्ट्रेटेड लॉट. तुम 90 तक बना के उसकी प्रशंसा नहीं बना रहे, जो है उसकी खुशी नहीं, उसका ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो नहीं है उसको लेकर इतना रो रहे हैं. रो सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट्स नॉट व्हाट जीन्स एंड टी शर्ट का कंफर्टेबल का लक्ष्य है. दैट्स नॉट व्हाट द लक्ष्य ऑफ योर लाइफ इज. क्यों इतना सब कर रहे हैं? लक्ष्य क्या है? कंफर्टेबल. मैंने पूछा, बच्ची तुम कंफर्टेबल हो तो क्या होगा? मैं कट शॉर्ट करता हूं. उसने कहा मैं अच्छी दिखूंगी. अरे अच्छा दिखाने वाली घड़ी, अच्छा दिखाने वाला हेयर स्टाइल जो मेरे पास नहीं है, अच्छा दिखाने वाले कपड़े, अच्छा दिखाने वाली गाड़ी, अच्छी दिखाने वाली पत्नी, अच्छे दिखाने वाले बच्चे, अच्छा दिखाने वाला घर, सारा दिखावा ही है. मैंने कहा दिख रहे हो अच्छे, एंड आई अप्रिशिएट फॉर हु हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग. देन व्हाट, देन व्हाट, देन व्हाट, देन व्हाट, देन व्हाट. एक जगह आके गाड़ी रुक गई. The essence of all morality of this world is happiness. तो कहती है अंकल मैं खुश रहूंगी. खुश होंगे तो क्या होगा? बोला खुश होंगे तो क्या होगा मतलब खुश रहूंगी. मैंने कहा हाँ तो खुश हो गए ना, then what? बोला then what कुछ नहीं, खुश रहूंगी. क्यों इतना सब मेहनत कर रहे? At the end of the day, you and I want to be happy. Yes or no? Want to be peaceful, easy, successful, tension free. Now the question is, how do you govern it? How do you achieve it? How do you make it? How do you conduct? पता है प्रॉब्लम है. सचिन रमेश तेंदुलकर को पूछा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था. मैं 99 पे आउट दिया है, मुस्कुरा करके पवेलियन में आता था. पवेलियन में आके मीडिया वालों ने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता, आप कंप्लेन नहीं करते हो, आपको इरिटेशन नहीं होता? सारी दुनिया जानती है गलत डिसीजन, आपके साथ अन्याय हुआ है, विरोध करिए, कंप्लेन करिए. बीसीसीआई चलती थी सचिन के दम पे, आईसीसी चलती है बीसीसीआई के दम पर. तुम कंप्लेन करो स्टीव बकनर का तो करियर ही खत्म हो जाएगा, चौपट कर सकते हो. जिंदगी में वो कभी क्रिकेट फील्ड में नहीं आ सकता. यू जस्ट से वन थिंग, वी विल सेट एन इंक्वायरी. पता है सचिन रमेश तेंदुलकर क्या कहता, क्या कहा उसने? दिस इज सर्टेन स्ट्रॉन्ग सिद्धांत. एंड यही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कर्म में भी बहुत महानता कर जाते हैं, वो अलग से कुछ करते नहीं है. मैं सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा पंखा इसीलिए नहीं हूं कि उसने 100 शतक बनाए, भारत रत्न अवार्ड, या प्रोलिफिक राइट हैंड बैट्समैन, umpteen records under his belt. I'm a big fan of Sachin Tendulkar because what he was as a person, as a cricketer. So who are you as an individual is what you will go and become a daddy back at home, a professional here, a husband back at home. You just cannot fake. कंपार्टमेंट में थोड़ी ना रहते हैं हम, अंदर की बात सब बाहर आ ही जाती है, आज की नहीं तो कल की. तो पता है सचिन तेंदुलकर प्रेस वालों को क्या कहा? मेरे लिए मेरा बल्ला बात करेगा, ये नहीं बात करेगा. और बॉलर कांपते थे उसके सामने. सो व्हाट्स योर सिग्नेचर? सिग्नेचर सबका यूनिक होता है ना. आपका खुद का सिग्नेचर बैंक वाले को लग रहा होगा कि ये ठीक नहीं है तो आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते. खुद का पैसा नहीं मिल पाएगा जो सिग्नेचर डजंट मैच विद योर ओरिजिनल वन. So what's my original signature, which is so unique? वो ethical standards है, वो certain values है
जो आप कभी गिव अप नहीं कर सकते, कितना भी चैलेंजिंग, मरने को क्यों ना हो, आप अपना वो सिग्नेचर को गवा नहीं सकते। वो मैं हूं। गिरीश इज इक्वल टू, से फॉर एग्जाम्पल, पंक्चुअलिटी, जस्ट वन वैल्यू। गिरीश इज इक्वल टू हैप्पीनेस, वो मेरा एक मूल्य है, और वो मैं मूल्य को कभी नहीं, ईडी साहब ने कहा मेरे को आधा घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए, जो संभव नहीं है। और पता है हम क्या करते हैं, ईडी सर छोड़िए, हमारे बॉस ने कहा ये आधा घंटे में रिपोर्ट बन जाना चाहिए। अब बॉस तो बॉस ही, हम तो कुछ कर नहीं। ओके सर, जी हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं सर, करना ही है सर, आपने कहा है तो हम कर ही देंगे सर। टीम बिल्डिंग सर, पॉजिटिविटी सर। मैंने कहा प्लीज कंप्लीट इट। जैसे ही मैंने फाइल उठाया, कमरे से बाहर निकला, पता है मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? किसको धोखा दे रहे हैं पता नहीं, आपके बॉस को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि आप गाली दे रहे थे। आपके 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स को पता चल जाएगा, भैया यू आर नॉट हेल्दी, देन व्हाई एम आई फेकिंग इट? तो क्या है मेरा मॉरल स्टैंडर्ड्स? A and B, I'm masking myself, and it is not healthy for Nalco नहीं है, it is first not healthy for myself. लक्ष्य क्या है जीवन का? हैप्पीनेस, पीस, हेल्थ। उसको क्यों गवा रहे हो किसी और के चक्कर में? काम, पढ़ाई, रिलेशनशिप, फ्यूचर, पास्ट, उसके चक्कर में यू एंड आई एम रिस्किंग लाइफ, एंड बहुत हेवी प्राइस पे करता है मनुष्य इंडिविजुअल लेवल पर। इसको हमको थोड़ा सा सेट करना है फ्रेंड्स। सो जीवन का उद्देश्य सब मिलाकर के अगर सुख है, शांति है, आनंद है, प्रश्न हाउ डू यू गवर्न इट, हाउ डू यू बिकम अ मास्टर ऑफ इट? प्रश्न, आप लोग गुस्सा करते हैं? जो लोग यहां गुस्सा करते हैं हाथ ऊपर उठाएं। आप लोगों को टेंशन होता है? जिनको टेंशन होता है हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, सर बहुत अच्छे लोग हैं आपके, मुस्कुरा मुस्कुरा के उठा। अरे मुस्कुराहट तो है एटलीस्ट, इवन दो यू आर सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, बट चेहरे पर मुस्कुराहट है, दैट आई लाइक इट। और कभी कभी पता है लोग मुस्कुरा के हाथ ऊपर उठ रहे, मैं उनको पूछता हूँ टेंशन होता है तो मुस्कुरा के उठाते हैं, और वो मन ही मन मेरे बारे में सोचते हैं, टकलू तो तू क्या कर लेगा बता, आज तक तो कोई किया नहीं है, हमारी तो जिंदगी यहाँ पे हालत गम, घर में टेंशन, ऑफिस में टेंशन, बारिश का टेंशन, जमाने भर टेंशन ही टेंशन। अब ये अच्छे आए और गए, लेकिन हमको क्या फायदा हुआ? होता है वो जरा हाथ ऊपर उठाए। जब मैं ये दूसरा प्रश्न पूछता हूं ना, दिस इज अ टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर, पूरे लोग आजू बाजू देखते कौन है, कौन ये कैसे बच गए यार, यार हमारी यहाँ जान जा रही है, और ये कहते हैं इसको टेंशन ही नहीं होता है। यू फील सो सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, यार इसको हो नहीं रहा, हमको यहाँ हमारी हालत खराब है। आई मीन इट्स नॉट वेरी हेल्दी रिस्पॉन्स, बट दैट्स ओके। तीसरा प्रश्न और सबसे खतरनाक प्रश्न, आप में से वो लोग कृपया हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, और बताइए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि जब मैंने कहा टेंशन होता है, दूसरा प्रश्न टेंशन नहीं होता, तो एक बार ऐसे ही मैं कार्यक्रम कर रहा था, उनके बड़े साहब बैठे हुए थे फर्स्ट रो में, मतलब इंडियन आर्मी प्रोग्राम है, सीओ सर वाज सिटिंग देयर, तो उन्होंने कहा गिरीश जी मैं बताता हूँ, मैं तो इनका माई बाप हूँ, कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मैं तो इनके रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने कहा आप ही बता दीजिए तीसरा कैटेगरी। उन्होंने कहा गिरीश जी ये तीसरा कैटेगरी उन महान आत्माओं का कैटेगरी है जिनको हाथ ऊपर उठाने में ही टेंशन हो रहा है। क्यों बेचारों की जान ले रहे हो? दबे हुए हैं टेंशन के बोझे से अपने जीवन से, हाथ ऊपर उठाने में, रिस्पॉन्स करने में तकलीफ हो रही है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? स्ट्रेस एंड एंगर is healthy or unhealthy? Unhealthy. Ethics are very healthy. सबसे पहला फायदा आपके शरीर को देता है, नंबर 2 फायदा आपके संबंध को, घर में विशेष, पर्सनल लाइफ में।
अब प्रश्न ये है, हाउ डू यू गवर्न इट? हम सबको पता है गुस्सा करना बुरा है, यस और नो, लेकिन फिर भी करते हैं। अब बताइए, आ जाता है, कहां से आता है सर? किडनी से, लिवर से, घुटनों से। पॉजिटिव स्ट्रेस इज हेल्दी, किसने कहा? रेज योर हैंड। ओह वंडरफुल। सो सपोज आई एम योर सन और मैं कहता हूं पापा कल मेरी परीक्षा है और मुझे स्ट्रेस हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? हु डिसाइड्स? एंड विल पापा अग्री, ओके बेटा टेक स्ट्रेस पॉजिटिवली, 100 में 200 लेकर आ? I understand where you are coming with that idea. There is a term called as eustress. मैं उसको स्ट्रेस नाम ही नहीं देता हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना को। उसको मैं एक ऑल्टरनेट शब्द यूज करूँ, इंस्पायर, मोटिवेट, इंटरेस्ट, डेडिकेशन, सिंसियरिटी। बच्चे तू सिंसियर होकर के पढ़, उसी को शायद आप कर रहे हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। बट स्ट्रेस अपने आप में अनहेल्दी है। क्यों अनहेल्दी है? जहां भी मनुष्य स्ट्रेस में होता है उसकी बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्रिएटिविटी डोल्स डाउन, योर एबिलिटी टू हैंडल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डीएम डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, आई विल नॉट गेट इनटू इट। अब प्रश्न ये है, मुझे पता है स्ट्रेस अनहेल्दी है लेकिन फिर भी हमको होता है, गुस्सा बुरा है लेकिन फिर भी जैसे किसी ने कहा आ जाता है। प्रश्न, क्योंकि उन्होंने कहा गुस्से के बारे में, गुस्सा आता है या कोई दिलाता है? हेलो, अच्छा जी, कुछ लोगों ने कहा दिलाता है, कुछ लोग बोल रहे सर दोनों में हम आगे हैं। तो दिला दिए तो आ जाता, अपने आप में भी आ जाता है। अगर कोई दिलाता है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। द प्रोग्राम फिनिशेस मे बी अंदर हाफ एन आवर लेटर। जाने के पहले आप लोग जब यहाँ से जाएंगे सभागृह से, तो मैं आपको कहूँगा प्लीज आपसे एक नम्र निवेदन है, जाने के पहले आप स्टेज में आना, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, ठीक है ना? छोटा सा गिफ्ट है। कुछ लोग घूर के देख, कहाँ है गिफ्ट? तुम तो भैया खाली हाथ स्टेज पे चढ़े थे। बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल है, असली में कोई गिफ्ट नहीं है, ठीक है ना? कुछ लोग बोले क्या गिफ्ट भाई, आप हमारे मन में इच्छा दिला रहे हो और कोई गिफ्ट ही नहीं है। एंड इट्स अ स्मॉल पेन, 5 रुपीज का यूज एंड थ्रो पेन। सो यू वॉक अप टू द स्टेज, आई गिव यू दिस गिफ्ट, इट्स अ जेस्चर ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स टू यू, यू आर सच अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडियन वी आर प्राउड दैट नालको इज डूइंग सो गुड। मुझे नहीं पता आपको वो प्राउड फील होता है या नहीं होता है, मुझे तो बहुत फील होता है। कुछ लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं टकलू तू काम करके बता यहाँ पे, फिर पता चलेगा कितना प्राउड फील होता है। हमको पता अंदर की बात है, बाहर वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। वो मैडम मेरे बारे में कितना अच्छा बोल रही थी, आपको यहाँ देखकर लगा जन्म जन्म का रिश्ता है। मैं सोच रहा था काश मेरी पत्नी ऐसा सोचती, ठीक है बाहर। और ये जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं सब पीड़ित हैं। They could relate to what I'm saying, करेक्ट है सर, घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, बाहर वाले हमको बहुत अच्छा कहते हैं। हम चाहते तो इनसे, बाहर वाले तो बोल के क्या करना है, हम तो चले जाएंगे अभी आधा घंटे में, हमको कहाँ मिलेंगी मैडम हर दिन मेरे बारे में, जन्म जन्म का रिश्ता है, जन्म जन्म का मिले हैं। हम तो चाहते हैं कि मेरी पत्नी हर दिन बोले वाह आप कितने अच्छे। अब जहाँ चाहते हैं वहां कोई बोलता ही नहीं है, ये तो हाल है। I mean, with due respect, I hope I'm not hurting anybody's sentiments. I'm just making a point on a lighter way. So कहने का भावार्थ ये है कि हम कैसे अपने आप को कंडक्ट करें so that I lead a very simple, easy, beautiful, ethical and morality को हमको धारण करना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन लखनऊ। ऐसे ही एक ऑडिटोरियम पर 1000 चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, उन सबको बिठाया गया और कहा गया, टॉपिक था मन की बात। तो हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को मैंने पूछा, दीदी क्या कहना है मन की बात में, डू यू वांट टू स्पीक अबाउट द माइंड,
द पावर ऑफ माइंड। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं, बच्चे अपने मन की बात पूछेंगे, आपको जवाब देना है। तो सर Q&A राउंड। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इतना कुछ प्रिपेयर भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा है, इज अ बॉय, 12th स्टैंडर्ड बॉय, और मैं चाहता हूं माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, आप सोचना, मुझे नहीं बताइएगा, आप सोचना कि आप मेरे स्थान पर होते थे, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ टीचर, एज एन एल्डर पर्सन, आप क्या जवाब देते थे? मुझे मत जवाब दीजिएगा, राइट एंड रॉन्ग का सवाल नहीं है, but I'm looking at what could be your thought processes with respect to what you will guide the child. ठीक है? And if you can share, I'll be very happy. ठीक है ना? कोई शेयर कर रहा है मतलब वो बहुत अच्छे हैं, कोई शेयर नहीं कर रहा अच्छे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। I mean, we're a very beautiful family and very interactive. पता है उस बच्चे ने मुझसे क्या पूछा? सबके सामने 1000 बच्चे एंड टीचर्स के सामने पूछा, अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं? So my question to you is, what would have been your probable response to that question? Should I lie? I don't want an answer. I'll tell you what I said. And thanks to my spiritual orientation of the last 25 years, और spirituality आपको वो clarity देता है. Number 1, right and wrong. Number 2, spiritual, right and wrong जानना नहीं जानना वो बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप भी बहुत कुछ जानते क्या सही है क्या गलत है, शायद इस संसार का हर सेंसिबल व्यक्ति जानता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। बट स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे मिला, इट गिव्स यू द पावर टू डू द राइट एंड टू अब्सटेन फ्रॉम द रॉन्ग। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, गलत तो गलत ना, नॉट अलाउड। दैट एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड नॉट गेट टेम्प्टेड और lured by anything, any advantage, but I'll stick to my discipline of the ethical moral grounds. आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई लोग सिगरेट पीते हैं, करेक्ट? और जितने लोग सिगरेट पीते हैं शायद उसमें से 95%, 95% पीपल नो इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो 95 भी थोड़ा कम ही है, पूरा 100 भी बोल दूंगा तो गलत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, मैं जानता हूं सिगरेट पीना बुरा है लेकिन पीता हूं। जीवन का फाउंडेशन ही क्या है? छोड़ो बाकी सब, मैं तो अपने लंग्स को क्या बोलते हैं, थ्रोट को बर्बाद कर रहा हूं। और दोस्तों मैं क्यों ये बता रहा हूं, इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट ऑफ एंगर ऑल्सो। हमको नहीं समझ में आता, गुस्सा करते हैं और हमारे गलत प्रोग्रामिंग है, गुस्सा चलता है, टेंशन चलता है, ये चलता है, ये चलता है, एक्चुअली नहीं चलता है। पता है प्रॉब्लम क्या है? बोथ एथिकल ग्राउंड को पकड़ के रखना और उसको गवर्न करना एवरी डे एवरी मिनट ऑफ माय लाइफ, उसको करने के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताता हूं। वैसे मैं कोई बहुत अच्छा गीतकार नहीं हूं, लेकिन फिर गीत के आधार से देखते हैं, चैलेंज के रूप में। उस गीत के पहला 2 वर्ड मैं गाऊंगा, पीछे के 2-4 वर्ड आप गाना। देखते हैं आपको कितनी जानकारी है। इट्स एन ओल्ड हिंदी मूवी सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? या मैं गाऊं? आप भी गला साफ करिए अपने। हाँ, बराबर का मामला होना चाहिए। मैं सुर में गाऊं और आप बेसुरा गाओ तो फिर तो अच्छा भी नहीं लगेगा। रेडी? दिल है क्यों नहीं मानता सर? मालूम है, जानता हूं, लेकिन मान नहीं पाता हूं, कर नहीं पाता हूं। तो फिर क्या जीवन में कर लिया? हमसे अच्छे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम मेकिंग अ वेरी बैलेंस स्टेटमेंट, फिर हमसे तो अच्छे वो जानवर हैं। They don't defy any natural laws. It's we human beings, अपने मर्जी से हम हर ethical, moral, natural system को बिगाड़ रहे हैं। और देखो दुनिया का क्या हाल है। I mean with due respect. प्रश्न पूछूं, क्यों नहीं मानता? जानता हूं। प्रॉब्लम क्या है? हमको बचपन से लेकर अभी तक इस मन को ठीक करना या इसको चैनलाइज करना या इसको पकड़ के रखना सिखाया ही नहीं। गाड़ी चलाना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, इंजीनियरिंग सिखा दिया, नौकरी करना सिखा दिया।
अब 12वीं कक्षा में आकर वो बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर झूठ बोलना चाहिए या नहीं। पता मैंने क्या जवाब दिया? थैंक्स टू माय स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ ग्रेट पर्सन। मैंने उस बच्चे से कहा बेटा अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्या कर लिया 12वीं कक्षा तक? यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, बोलना चाहिए या नहीं। 17 साल की उम्र हो गए, अभी तक तुम डिसाइड नहीं कर पाए कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पता है मैंने उस बच्चे को क्या कहा? आई मीन ही गॉट रियली इरिटेटेड। मैंने उसको कहा मैं नहीं बताऊंगा कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। इतना मैं जरूर बता दूंगा कि तुमने प्रश्न क्यों पूछा है। तो वो बच्चा शायद मेरे बारे में सोच रहा होगा टकलू, एक तो तू सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है, ऊपर से उल्टा मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने क्यों प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतने माइक्रो लेवल पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसीलिए बड़े बड़े एस्पेक्ट्स में हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को पकड़ के नहीं रख पाते। हम इतने वल्नरेबल हो जाते हैं, इतने हेल्पलेस हो जाते, चाहते जरूर हैं, इतने एथिकल डायलेमास आता, करूं नहीं करूं, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है, हम इतने वीक पड़ जाते हैं। पता है मैंने बच्चों को क्या कहा? मैंने कहा बेटा अगर मैं तेरे को कह देता कि झूठ बोलना बुरा है, गलत है, तो तू दुखी हो जाता। तुमने प्रश्न ही इसीलिए पूछा है ताकि कन्वीनियंटली गिरीश तेरे को तेरे कमी कमजोरी को सर्टिफाई कर दे कि हाँ बेटा मैं जानता हूं बुरा है, लेकिन कभी कभी किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो पुण्य के खाते में। वो बोलेगा वाह परमिशन ग्रांटेड, सर्टिफाइड। अंकल ने कहा, इसके बारे में कहा, ये मुंबई से आया बिहेवियरल स्पेशलिस्ट है, उसको छुट्टी मिल गई मेरे द्वारा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप और मैं, इस संसार का हर व्यक्ति अपनी कमी कमजोरी को बहुत कन्वीनियंटली दूसरों के द्वारा सर्टिफाई करता है। वो तो कहता है ना, वो तो करता है ना, उन्होंने तो कहा है ना, गांधी जी ने ऐसे किया था ना, भगवान ने ऐसे किया था ना, राम ने ऐसे किया था, तो हम भी कर सकते। हेलो, सही कह रहा हूं? ये एक चीज दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि कन्वीनियंटली आई एम वीक, और मैं अपने वीकनेस पर बहुत अच्छी तरह पर्दा डालता हूं विद जस्टिफिकेशन कि साहब ने भी ऐसे किया, मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं, जमाना ही ऐसा करता है। सचिन रमेश तेंदुलकर तो ऐसा नहीं था, मैंने डॉक्टर कलाम को देखा है, वो तो ऐसे नहीं थे। और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए आप वैसा बने। वो सारी दुनिया कैसे कर रहा हो, आपका बच्चा बोले माई डैड इज द बेस्ट डैड ऑन प्लैनेट अर्थ। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, चाहे वो बच्चे और आप माता पिता हो, या बिटवीन यू एंड योर लाइफ पार्टनर, आप पति पत्नी और हस्बैंड वाइफ, बिटवीन टू फ्रेंड्स, बिटवीन मी द सबऑर्डिनेट एंड द बॉस, बिटवीन मी एंड द रिपोर्टिंग मैनेजर, बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल्स, जीवन में कोई भी दो व्यक्ति के बीच में कोई भी एक व्यक्ति दूसरे से झूठ क्यों बोलता है? झूठ का आधार क्या है? वैसे तो बहुत कुछ आधार हो सकते हैं, एक सिंपल आधार मैं बताता हूं, वो है डर। क्योंकि अगर सच बता दिया तो गए काम से, फिर तो नुकसान है। सच बता देंगे तो मम्मी डांटेगी, पापा चिल्लाएंगे। यस और नो? हाँ या ना? Now I am going to go into that originality of where I am starting. तो between a daddy and a son, मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है और झूठ का आधार डर है। तो प्लीज सोचिए, अपने से प्रश्न पूछिए, पापा और बेटे के बीच में डर है? कैसे पापा हो फिर आप? क्या अच्छे पापा हो, क्या एथिकल पापा, और क्या गवर्न कर रहे हो बच्चे की जिंदगी में, क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं? क्या है द डूइंग पार्ट कि द चाइल्ड, अरे सारा दुनिया छोड़ो, कम से कम मुझसे तो नहीं डरना चाहिए, मैं पापा हूं, मेरे द्वारा ये पैदा हुआ है, मेरा जीवन है ये, इसके लिए मर मर के जी रहा हूं, इसके लिए सब कर रहा हूं, और ये ही मुझसे डर रहा है। कमाल है जी। क्या है लाइफ, कर क्या रहे, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, और सब घोटाला है। सॉरी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन। और पता है, मैं काउंसलिंग करता हूं, मैंने ऐसे माता पिता को देखा है जो मेरे सामने रोते हैं और कहते हैं सर मेरा बच्चा ऐसा किया मेरे अगेंस्ट, अब मैं कैसे इसको पैसिफाई करूं बताओ। और ये मैं नहीं बता पा रहा हूं अपफ्रंट, आई कांट से कि आपकी गलती है,
बचपन से तो वो नहीं डरता था। प्लीज बताइए, बच्चा जब पहली बार झूठ बोलता है, आपने गुस्सा किया या प्यार किया उसको? वो तो इंप्रेशन यही क्रिएट कर रहा है। थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, नए कॉलेज में ये ऐसा नहीं है कि आप बस बैठो और मेडिटेशन कर लो और आप आध्यात्मिक बन जाओगे। इट इज हैज टू बी अप्लाइड। मैं 11 साल, जैसे मैडम कह रही थी, मैं 11 साल मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मैंने बच्चे को असाइनमेंट दिया, उसने किया नहीं, एक हफ्ते के बाद लाके दे रहा, बोला सर मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने कहा राहुल बेटा मैं नहीं लूंगा। You can be strict and disciplined, but गुस्सा मत करिए। गुस्सा is not ethically right, physically not right, relationship में not right। आप इंसल्ट नहीं कर सकते किसी का, वो गलत है, फैक्ट है। इंसल्ट करने का अधिकार किसने दिया? वो भी एक जीवन है। जस्ट बिकॉज मैं टीचर हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज मैं पापा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी को कुछ भी कर सकता हूं। अरे आपके और आपके पत्नी के बीच में भारत सरकार क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ आ जाएगा, और अगर उसने कंप्लेंट कर दिया तो आप और मैं अंदर भी हो सकते हैं। संविधान प्रोटेक्शन देता है आपको, बस एक ही चीज करने का अधिकार है, वो एथिक और गवर्नेंस। प्यार करो, सम्मान करो, समझाओ, इंस्पायर करो, मोटिवेट करो। गुस्सा करने का अधिकार किसने दिया? वो 7 फेरे लेते हैं, 7 फेरों का वो जो मंत्र है वो पढ़ के देखिए। क्या इट्स अ प्रॉमिस that what all I would do ethically, I will protect you। तो वास्तविकता तो है ही नहीं। पता है मैंने उसको कहा मैं नहीं लूंगा तुम्हारा असाइनमेंट। बोला नहीं सर मम्मी की तबीयत खराब थी। मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल में? बोला सर फलाना फलाना हॉस्पिटल में। मैंने कहा बेटा मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएशन, गायनोकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन सब के साथ बहुत रिसर्च करता हूँ। तेरी मम्मी से मैं जाके मिलता हूँ, मैं मेडिटेशन सिखा के उनकी तबीयत ठीक हो जाएगा। पहले चलते हैं, मैंने अपना गाड़ी भी लेकर आया, तू भी बैठना, मैं बताता हूँ कब हम चलेंगे। बोला नहीं 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 सर वो विजिटिंग आवर्स वो नहीं है। मैंने कहा तो कल चलते हैं, कल छुट्टी भी है। बोला नहीं नहीं सर कल भी नहीं मिल सकते। मैंने कहा झूठ मत बोल बच्चे, तू सच बोलेगा ना तेरा मैं असाइनमेंट भी ले लूंगा, तेरे को जितना मार्क्स मिलना होगा ना एक्स्ट्रा 2 मार्क्स दूंगा। सच बोलने के लिए आपने मोटिवेट किया या झूठ बोलने पे डराया? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लुक एट हाउ वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। और फिर हम रोते हैं, सामने वाला झूठ बोलता है, ये गलत करते हैं, इनको पता नहीं है। वो व्हाट इज योर एक्शन? हाउ आर यू गवर्निंग इट? हाउ कैन यू इंस्पायर समवन टू बी ऑनेस्ट टू यू? कैन यू मोटिवेट समबडी टू बी ऑनेस्ट टू यू? बोला सर, मैंने कहा सच बोल। बोला सर भूल गया था, थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैंने काम टाइम पे नहीं किया। मैंने कहा गुड, कीप इट। मैंने उसको जितना मार्क्स दिया उसके अलग, मैंने कहा राहुल तेरे को इतना मार्क्स डिजर्व करता है, ये एडिशनल 2 मार्क्स है फॉर बीइंग ऑनेस्ट। प्रश्न पूछता हूं, ये बच्चा कल की डेट में मुझे झूठ बोलेगा कि सच बोलेगा? अरे सच बोलने में रिवॉर्ड करिए। मैंने ये चीज ब्रह्मा कुमारी में सीखा। दैट्स वेयर यू कंडक्ट योर लाइफ। एंड मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा बच्चा, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो संसार के सबसे महापाप करके भी आता था ना, तो भी मुझको कहता था सर मैंने ये गलती की है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं था। गंदा है ये, गलत है ये, तेरे पे मैंने कितना विश्वास किया, तूने मेरा ही विश्वास तो। आप ही रो रहे हो, आप ही इरिटेट हो रहे हो, आप ही प्रॉब्लम में देख के घबरा रहे हो। क्या शेयर करेगा आपको आपका प्रॉब्लम? क्यों शेयर करेगा? पापा बेचारे दुखी हो जाते हैं, मम्मी रोती रहती है, छोड़ जाने दे, गर्लफ्रेंड को शेयर कर देता हूं। या कम से कम वो रोती नहीं, वो बोलती मैं भी ऐसी करती हूँ, चल दोनों मिलके चाय पीते। I mean there is no solution to it, you have to bear it, but I am there with you। but मम्मी पापा ओ गंगा जमुना तुम्हें इतना बड़ा प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे, वो रिएक्शन देख के बेचारा बच्चा घबरा जाए। So झूठ, can I be honest to myself? Forget the whole world। Honesty, sincerity। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ मेरे लाइफ का। मैं ना बहुत वियर्ड टीचर रहा हूँ, थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी। बाकी टीचर्स क्लासरूम में आपने भी अगर इंजीनियरिंग वगैरह किया हो तो आप भी शायद थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं टीचर्स। टीचर आते ही साथ कहती है मैं तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर हूँ, मैं 40 घंटे का थियोरी लेक्चर होगा,
2 प्रैक्टिकल होगा, 1 असाइनमेंट होगा, 4 यूनिट टेस्ट होगा, एक फाइनल यूनिवर्सिटी पेपर 60 मार्क्स का, एंड फाइनली ब्रह्मास्त्र टीचर निकालती है जिसका कोई उपाय नहीं है, और फाइनली टीचर कहती है 40 इंटरनल मार्क्स मेरे हाथ में। बच्चा बोलता गए काम से। बाकी 60 मार्क्स तो लेना आसान है, 40 खतरनाक है जो इनके हाथ में। और पता है टीचर क्या कहती है? बाइफर्केशन। 5 मार्क्स फॉर पंक्चुअलिटी, 5 मार्क्स फॉर क्लास पार्टिसिपेशन, 5 मार्क्स फॉर एटीट्यूड, 5 मार्क्स फॉर योर सिंसियरिटी। पीछे बैठ के बच्चा अपने फ्रेंड को कहता है करना क्या है, हो गया कल्याण। अरे पढ़ाओ, खत्म करो, हम आंसर शीट में लिख देंगे, फिनिश इट। व्हाट एटीट्यूड फैटिट्यूड। चलो छोड़ो। गिरीश सर एंट्री करता है, मैं उनको कहता हूँ आई एम योर सो एंड सो प्रोफेसर, 40 आवर्स थियोरी लेक्चर, प्रैक्टिकल, ये वो, 60 मार्क्स यूनिवर्सिटी पेपर, 40 इंटरनल मार्क्स जो मेरे हाथ में है। मैं उनको कहता हूँ मैंने तुम्हारे अकाउंट में टॉप अप कर दिया। Don't tell me you're sincere. Don't tell me you are a gold medalist in your 12th standard. Don't tell me you will respect me. Not interested. तेरे को मार्क्स ही चाहिए था ना, दे दिया तुम्हारे अकाउंट में। पता है हमारे बच्चे हमको गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, कैसे हैं सर, 5 मार्क्स का गुड मॉर्निंग। मैंने कहा तेरा 5 मार्क्स का गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए, करना है ना तो बिना किसी मार्क्स के गुड मॉर्निंग कर। सचमुच में तेरे को लगता है आई डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, डू इट। और यू थिंक यू डोंट डिजर्व, बट दैट्स माय कर्टसी, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई शुड रिस्पेक्ट यू, दैट्स इट। वो सीख सकता है तो कर, नहीं तो मेरे को तेरा गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए। दे दिया, तेरे अकाउंट में 40 मार्क्स दे दिया। टाइम पर नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू क्लास अटेंड कर नहीं फर्क पड़ता है, तू असाइनमेंट कर नहीं फर्क पड़ता है, तेरे को मार्क्स ही चाहिए था ना, दे दिया। और इसका रिजल्ट बताऊं, वो बड़ा खतरनाक रिजल्ट आता है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। बाकी सब टीचर्स के क्लास में 8 बजे सुबह का क्लास शुरू होता है, ये बंदा 7:30 बजे उठता है हॉस्टल में, क्योंकि रात भर नेटफ्लिक्स भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है। अब उठता 7:30 बजे, बोला गए काम से यार, 8 बजे फिर स्कूल शुरू होने वाली। ऐसे ही जीन्स पहनता है, टी शर्ट डालता है, बैग लगा के भागता है वो क्लासरूम से। उसका रूममेट उसको कहता है नहा तो ले कम से कम, तू ऐसे ही जा रहा है तू क्लासरूम में। बताइए क्या कहता है? इडियट, ज्ञान मत सुना मेरे को। तू म्युनिसिपैलिटी के पानी में नहाता है, 1 लीटर 5 पैसे का आता है, मैं 180 रुपए 200 ml के पानी से नहाता हूं। परफ्यूम, डिओड्रेंट, और भागता है क्लासरूम में। बजाज ऑटो के इंजन से ज्यादा स्पीड इसकी होती है, ये दौड़ रहा है। ओलंपिक्स में हमको 2-4 गोल्ड मेडल तो ऐसे मिल जाते थे। ये भागते एग्जैक्टली 7:59 को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करता है, क्लास में एंट्री करता है, और टीचर को देख के कहता है मैडम 5 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, आई एम ऑन टाइम, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? इज पंक्चुअलिटी वर्थ 5 मार्क्स? हु इज सेटिंग इट? Who is creating it? What is the way you are governing discipline? That's education. Is worth 5 punctuality 5 marks. मैंने कहा मेरे को सिस्टम के उसके चलना ही नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं बच्चों को सत्य सिखाऊंगा और उसका तरीका आना चाहिए, क्योंकि मैं पावरफुल हूं, मैं बहुत क्लियर हूं। स्पिरिचुअलिटी का 2 एक तो क्लियर हूं। उदाहरण, प्राइमरी स्कूल टीचर क्लास में एंट्री करते, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सब ची पी चू सब चालू है उनका, बच्चे कहां शांति से बैठते जैसे आप बैठे। पता है टीचर क्या करती? शी टेक्स द डस्टर। दिस इज प्राइमरी स्कूल टीचर। 500 GB खाली है छोटू का, एंड टीचर राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल एंड अ फोल्डर क्रिएट करे, द फर्स्ट इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंस। टीचर पता क्या करती? डस्टर लेती है, टेबल के ऊपर थम थम थम, और टीचर चिल्ला के कहती है मेंटेन साइलेंस। तो छोटी बच्ची पहले रो में बैठी हुई बोलती मैडम धीरे बोलिए ना। यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश साइलेंस बाय स्क्रीमिंग। हेलो, मुझे तो नहीं समझ में आता है। शांति की स्थापना चिल्लाकर, चिल्लाओ मत। कौन चिल्ला रहा है? Who is agitated and say चुप रह तू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हम ये ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी बातें ही आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। दैट्स हु यू आर एज अ पर्सन।
एनी चेंज, ये मैं नहीं कहता हूं, दीज आर साइकोलॉजिस्ट, एनी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव happens at 3 levels. One is outcome based changes, second is process based changes, and at the core it is identity based changes. और इस संसार में जितने लोगों ने आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस किया है ना, वो सफल हुए, क्योंकि बाकी दोनों में इतना आपको प्रेशर लगेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, यू आर लुकिंग एट एन आउटकम। मैं मोटा हूं, मेरे को 20 किलो कम करना है, 20 किलो कम करना, 20 किलो कम करना, 2 दिन जिम में जाओगे, 2 दिन एक्सरसाइज करोगे, तीसरे दिन छोड़ जाने दे, इतनी अच्छी बारिश हो रही, सुबह ही तो नींद आती है, यू विल ब्रेक इट बिकॉज यू आर ओनली फोकस ऑन द आउटकम आउटकम आउटकम। सेकंड इज प्रोसेस बेस्ड, चलो हफ्ते में 3 दिन उठूंगा सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे, फिर बोलेंगे छोड़ जाने दे, इट विल टैक्स यू। कैन यू चेंज द बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मैं हेल्दी हूं, बोलिए तो सही, जो चाहते हो उसके स्वरूप में अभी मैं ऑनेस्ट हूं, मुझे पता है नहीं है, मेरा लाइफ अच्छा है, मुझे पता भी कॉम्प्लिकेटेड है, शुरुआत कहां से करोगे? और वो शुरुआत का जो आधार है ना, फील, हम बहुत जल्दी महसूस कर लेते, गुस्से को, टेंशन को, इंसल्ट को, बुराइयों को। प्रश्न पूछूं, गुस्सा करते हैं हम, मैंने पूछा था आपको, ठीक है? शांति और खुशी करते हो या ढूंढते हो? इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, पत्नी में, बच्चे में, शादी में, धन में, सैलरी में। सॉरी फ्रेंड्स, इट्स अ फ्लॉड मॉडल। गुस्सा में कर, ऐसा कभी हुआ क्या? मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी, मेरे मित्र भी साथ में बैठे थे, मैं गाड़ी से उठा तो देखो बहुत डैमेज कर दिया, मेरे मित्र ने कहा गिरीश छोड़ना नहीं ना, पूरा वसूल करेंगे इससे। हाँ बिल्कुल, वसूल तो करना चाहिए भाई, ही हैज मेड अ डैमेज, ही हैज टू मेक गुड द लॉस। और मैं उसको, वो सामने पीछे वाला ड्राइवर मेरे सामने खड़ा है, उसको देख रहा हूँ मुस्कुरा के, तो मेरे फ्रेंड ने मुझको ना, ठीक क्या कर रहा है तू, गुस्सा तो कर, गाली तो दे। पता है मैं अपने फ्रेंड को क्या कहता हूँ? दोस्त, गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है, शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा, खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है, दुखी होने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, कभी कहा? इरिटेट होने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, कहा? चिंता करने की कोशिश कर पा रहा हूं लेकिन पता नहीं यार, कोई चिंता ही नहीं है, नहीं हो पा रहा है, चिंतन का चिंता ही नहीं हो रहा है। क्या जीवन, क्या गवर्नेंस ऑफ लाइफ, और क्या स्टैंडर्ड, क्या क्लैरिटी है? जो चीज बुरा है उस पर कंट्रोल ही नहीं है। आप गाड़ी चलाइए बिना कंट्रोल के, अच्छा तरह पहुंचोगे यहां पर विदाउट एक्सीडेंट, खुद भी एट रिस्क, यू आर द होल सोसाइटी इज एट रिस्क बिकॉज यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर योर व्हीकल। हाउ अबाउट योर ओन इमोशंस? वो पता है क्यों? हमको ये सब सिखाया ही नहीं बचपन से, वी हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड। और अब अगर हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा टाइम निकालिए, आई नो आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस भी, घर भी, परिवार भी, जो भी है, थोड़ा तो अपने समझिए तो सही। पता है मनुष्य क्या कहता है? मरने की फुर्सत नहीं। तो फिर मैं उनको मजाक में कहता हूं, सर इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूं। और यमदूत बाहर दरवाजा खटखटा, इनसे कम टुमारो यार, आई डोंट हैव टाइम टू डाई, यू आर सुपर पावर देन डेथ। गारंटी नहीं है कल तक जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, और टाइम नहीं है मरने की। लुक हाउ एरोगेंट वी आर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैडम ने इतना अच्छा शायरी सुनाया है, तो मैं भी कंपटीशन में कम नहीं होता, मैं भी सुना देता हूँ। थोड़ा समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू अंडरस्टैंड आई विल बी वेरी हैप्पी। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूं, माफ करना है जिंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहा हूं। ये जिंदगी को ही बेहतर बनाना, कंफर्टेबल बनाने की जद्दोजहद में आई डोंट हैव टाइम फॉर लाइफ, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई ओन इमोशन, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग गुड। आई डोंट नो वेयर वी आर बिजी एंड फॉर व्हाट आर वी बिजी सो मच। बिजी 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 बिजी, माफी चाहता हूं, मैं जानता हूं आप लोग बिजी रहते हैं,
बिजी में भी इजी रहा जा सकता है, यू कैन फाइंड वेज एंड मीन्स। मोबाइल देखने के लिए टाइम है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत कम देखते हो मोबाइल। टाइम वेस्टर्स तो हमारे जीवन में है ही नहीं, हम कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, हर क्षण प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव। मैं थोड़ा sarcastic भी हूँ कभी कभी, ठीक है, व्यंग भी जड़ देता हूँ। प्लीज बताइए, गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, कितना ब्यूटीफुल लाइफ होगा। मैं अभी हैदराबाद में आई वाज डूइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सरसाइज मेडिसिन, उसमें मैंने एक मन का एक्सरसाइज कराया। ये जितना भी मैं प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। हमारे पास एक गिफ्ट है, प्रकृति ने कहो, भगवान ने कहो, जिसने भी हमको ये रचना सुंदर रची है, आई मीन दिस क्रिएशन इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आई मीन आई रिस्पेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरे को बहुत उसके प्रति सम्मान है, बट ये जो लाइफ का जो इंटेलिजेंस है ना, इसके प्रति भी हमारे मन में बहुत आदर सम्मान होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो मेरे पास 15 मिनट है, एक आपको मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। बस वो जो क्लैरिटी और वो शक्ति, क्या शक्ति आपके पास है, मेरे पास है, हम कोशिश करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, करें। मेरे पास एक छोटा सा प्रॉप, अयो नहीं लगा, यस आई हैव इट, ठीक है। मैं एक वॉलंटियर चाहता हूँ, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ आ सकता है, एनीबडी हु विशेस टू कम हियर, आप प्लीज कम कर। वाह, कुछ लोग सोच रहे थे अभी तक कितना अच्छा चल रहा था, स्टेज पे क्या बुला रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आइए सर, ये ना एक वॉशर है, ठीक है, ये कोई जादू नहीं है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। I'll not tell you what exactly it is, you should see. क्या नाम है ब्रदर आपका? लवेश सोनी। आप कौन से डिपार्टमेंट में? इलेक्ट्रिकल, वंडरफुल, वेरी गुड, रिलैक्स, ठीक है। दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस बेस कि आप कर लिए हो तो बहुत अच्छा है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। ये एक वॉशर है, ठीक है, और ये एक रस्सी है, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ो। माय गॉड, रिलैक्स, हिज हैंड्स आर शिवरिंग, ठीक है, लविश रिलैक्स, ठीक है, कंफर्टेबल, हाथ से कुछ नहीं करना है आपको, स्टेबल है, सिर्फ सोचो, क्रिएट अ थॉट, बिलीव इन इट कि दिस वॉशर इज मूविंग लेफ्ट एंड राइट, इट इज स्विंगिंग लाइक अ पेंडुलम। गाना आप खोल के रखो, जस्ट रिलैक्स, डोंट डाउट इट। Wonderful is happening. Great. अब मैं चाहता हूँ लवेश, I want you to think that this pendulum is moving in the front and coming back. वो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। Okay, I want you to think it is moving. Relax. I can hear your heartbeats. चलो लवेश, कैन यू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? देखा आपने? मैं थोड़ा ट्राई करूं, ठीक है। लवेश मेरा हाथ पकड़ो, उसके ऊपर हाथ पकड़ो, ठीक है, कोशिश करना कि ये हिले, हमारा हाथ शिविर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। दिस शुड मूव एंटी क्लॉकवाइज। जो सोचोगे वो होगा, साहब को पता चले नहीं पता चले, दिस इज मैटर, जस्ट वन थॉट। थर्मो न्यूक्लियर इमोशनल बॉम्ब आपके हाथ में है और आप उसे फोड़ रहे हो हर पल, सिर्फ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, चाहते हो कंफर्टेबल। See, I'm not even talking to it, I'm just created a thought. Stop, clockwise,
this should move clockwise. Believe me, you should trust me that I'm not doing it with the hand. I'm trying to keep my hand as much stable as possible. ये मैं बच्चों के साथ कराता हूँ. Look, ये वॉशर सुन सकता है, आपका हार्ट, किडनी, ब्लड प्रेशर, पैनक्रियाज नहीं सुन रहा है. मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ मन से क्योंकि ऑफिस में प्रॉब्लम है. मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ बिकॉज ऑफ अवर टॉक्सिक रिलेशनशिप बैक होम. मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि सासू माँ ठीक नहीं है. और मन में इतना कॉम्प्लिकेशन है. लुक एट इट. और मैंने देखा है जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उसका इतना ब्यूटिफुली और पावरफुली घूमता है. लुक नाउ दिस इज मूविंग क्लॉकवाइज. स्टॉप, लेफ्ट एंड राइट लाइक अ पेंडुलम. Can I harness the potential which is given by God, nature, प्रकृति? साइंस है ये. आप सोचिए तो सही, बिलीव तो करिए. And it will listen to you, friends. Anybody would love to try? कुछ लोगों को डाउट, पता नहीं हमारा नहीं होगा तो इज्जत का फलूदा बन जाएगा. प्लान नहीं दे भैया, तू जा, तुम्हारा तो ऐसे 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 ऐसे. मैंने पहले भी कहा, लविश, I want you to try it once again. Relax. हाँ. I have to check the time. Oh my God, 10 minutes. क्या चाहते हो? Left, right. Believe in it. Don't doubt it. लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या होगा, कुछ. Just feel, believe. ये पेंडुलम लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है. होता है उसका एक ही कारण है, लोग क्या सोचेंगे. मतलब अपने आप को कंफर्टेबल तो मैं रखता हूँ, बट फिर भी एकदम से कभी प्रैक्टिस नहीं है तो मतलब साल 2 साल में एक बार है ना. ठीक, बहुत. शादी बहुत बार करते हैं. सॉरी, बेटर. गुड. कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? चाहता हूं स्टेज फियर ना हो, लेकिन हो रहा है. पता है ये क्यों होता है? हमारा सब गलत प्रोग्रामिंग है दोस्तों. हमारा सब बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है. सत्यवादी थोड़ी ना दुनिया में रह सकता है. हमेशा मुस्कुराते रहो, लोग आपके सर पे चढ़ जाएंगे, तुम्हारी औकात नहीं रहेगी. यू विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. इट इज अ बैड वर्ल्ड, गिरिश. एंड यू आर स्पीकिंग अबाउट मॉरलिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस. ऐसा थोड़ी ना होता है. देखो, अंदर से ही आ रहा है. ऐसे थोड़ी ना होता है. ऐसे थोड़ी ना होता है. चाहता हूं ऐसा घूमे, हाथी कहां पर है. और फिर भगवान के सामने, भगवान जी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए. लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट इज पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी. मोरल बेस्ड, एथिकल बेस्ड ऑल्सो. 100% सफल भी हो सकते हो. पैसे भी कमाया जा सकता है. अफ्लुएंस भी आ सकता है. यू कैन बिकम पॉपुलर ऑल्सो. एक ही चीज को करना है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, द आइडेंटिटी लेवल. मैं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं सफल हूं. These are serious simple affirmation, but it has very very deep impact on your physiology also. मैं बस एक चीज आपको बताता हूं as far as parenting goes, friends. ठीक है? I mean, it will take 5 minutes. I have 7 minutes. Let me see if I can cover it in that time. अमेरिका में एक समय था जहां छोटे बच्चों की मृत्यु, क्रॉलिंग बेबीज की मृत्यु होती थी. माता पिता का ध्यान बच्चों पे नहीं होता था. घर के बाहर स्विमिंग पूल होता था, बच्चा क्रॉल करके स्विमिंग पूल में जाके गिर के डूब के मर जाता था. तो हाई चाइल्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग. सो द अमेरिकन पेरेंट्स केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया टू चेक इन्फेंट मॉर्टेलिटी. पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटे बेबीज को स्विमिंग करना सिखा दिया. भारत में होते थे तो शायद हम उस पर मिट्टी डाल के बंद कर देते थे. But they taught the baby how to swim. And what really, surprised me was that when I was reading it in a medical journal, the case, पता है मेडिकल साइंस क्या कहता है?
4 महीने से बड़े बच्चे को स्विमिंग सिखाया जा सकता है। 5वां महीने का बच्चे को भी स्विमिंग सिखाया, मेरा तो आंखें बाहर आ गई। हम अच्छे बड़े बड़े स्विमिंग नहीं सीख पाते हैं, ये छोटू कहां से सीख जाएगा? उसको तो भाषा भी नहीं समझ में आ रही है। मम्मी पापा ने वो बच्चों को स्विमिंग पूल में लेकर के छोड़ दिया पानी में। मम्मी पापा ट्रेनर सब पानी में खड़े थे, लेट द बेबी इनटू द वाटर, द बेबी वेंट इनटू द वाटर। और जैसे ही वो पानी के अंदर गया, उन्होंने 2 ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस किया। द बेबी वाज एबल टू एग्जिबिट नेचुरली, सिखाया थोड़ी ना अभी तक उसको कुछ, और बेबी अपने आप कर पा रहा है। पहला, श्वास को रोक के रख पा रहा है। आप और मैं पानी में जाएंगे तो गड़क गड़क करके इमीडिएटली विद इन नो टाइम यू एंड आई विल स्टार्ट गल्पिंग वाटर, और अगर हम शॉक में हैं तो और ज्यादा पीना शुरू कर देंगे, एंड वी विल डाई, लंग्स विल बी फुल ऑफ वाटर। ये छोटू कैसे होल्ड करके रख पा रहा है? One unscientific reason could be on a lighter way, ये पिछले जन्म में आदरणीय रामदेव महाराज का परम शिष्य रहा होगा। इसने इतना प्राणायाम का अभ्यास किया है लास्ट जन्म में कि इस जन्म में भी उसको सांस रोक के रखने का, with due respect to आदरणीय रामदेव महाराज। Second observation, the baby was able to keep the eyes open in the water। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे से कोई चीज गिर जाता है, आवाज आता है, तो हमको ना शॉक लगता है, दैट्स इज रिफ्लेक्सेस। मैं अपना हाथ को प्रोटेक्ट करूंगा, आंखें बंद कर लूंगा पर नैनो सेकंड, और ये बेबी आंखें खोल के रख पा रहा है। उस पर उन्होंने रिसर्च किया, और पता है उन्होंने क्या पाया? डॉक्टर्स ने, एवरी बेबी वाज एबल टू डू इट। ऐसा नहीं एक्सेप्शनली एक कर पा रहा बिकॉज ऑफ सम एबिलिटी, हर बच्चा। पता है इसको मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन लैंग्वेज में। आप यहाँ पर अगर कोई पीडियाट्रिशियन होंगे तो उनको पूछना, इट इज कॉल्ड एज ब्राडिकार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट। इट्स अ मेडिकल टर्म यूज्ड, दैट इज नेचुरल। पोस्ट बर्थ फॉर सम टाइम बच्चे के अंदर ये क्वालिटी रहती है। पता है वो क्यों ऐसा कर पा रहा है नेचुरली? क्योंकि वो माँ के गर्भ में इसी एनवायरनमेंट में था, सराउंडेड विद द amniotic fluid, उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर वो लूज कर जाता है एबिलिटी, लेकिन कुछ समय तक उसके पास नेचुरली जन्मजात है। इसका फायदा माता पिता ने उठा लिया। गिरते साथ डूबेगा नहीं, श्वास को रोक के रख पा रहा है। उसको पैडल करना सिखा दिया, अगर वो मुंह के बल गिरा है तो उसको ऑन द बैक। आप में से कितने लोगों ने वीडियोस देखा है स्मॉल बेबी स्विमिंग? लॉट ऑफ पीपल, करेक्ट? अब ये है अमेरिकन एक्सपीरियंस। मैं जो बात बताने वाला हूं, व्हेन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन इज दिस फैक्ट। यही चीज आप भारत में ले लीजिए। मम्मी पापा चाचा मामा दादा दादी नाना नानी हम सब गए वीकेंड में पिकनिक मनाने के लिए। छोटू भी है हमारे साथ, और जहां हम पिकनिक मनाने गए वहां तालाब है, नदी है, झरना है, कुआं है, स्विमिंग पूल है, समुद्र है। पता है मम्मी क्या करती है? मम्मी छोटू का हाथ इतना टाइट पकड़ती है जितना पुलिस भी कैदी को नहीं पकड़ता है, और हाथ पकड़ करके कहती है नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। और पता है जब मम्मी कहती है डूब जाएगा तो छोटू क्या करता है? हमारा तो फाइल फोल्डर ही नहीं है, क्या डूब जाएगा? आई डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, आई एम तो परप्लेक्स्ड। 15 साल तक डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। पिकनिक स्कूल वाले गए हैं, मम्मी उसकी जान खा लेती है, रात भर बोलती है अकेले नहीं जाना, नजदीक नहीं जाना, ब्रिज के पास नहीं जाना, मैडम का हाथ पकड़ना, फ्रेंड्स के साथ रहना, तुम डूब जाएगा। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, टिपिकल इंडियन मदर फील शी इज सो प्रोटेक्टिव। क्या है वो एथिक्स? यू आर डूइंग अ सिन। डरा रहे हो उस बच्चे को। लुक एट योर गवर्नेंस, लुक एट योर एक्ट, एंड दिस इज ऑल सेल्फ सर्टिफाइड गुड मम्मी, गुड पापा। बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे की सिक्योरिटी के लिए। मैं इसका मतलब ये नहीं आप धक्का मारो बच्चे को स्विमिंग पूल के अंदर। आई मीन डोंट प्रोग्राम इट नेगेटिवली। 15 साल का बच्चा राहुल गर्मी की छुट्टी में 10वीं कक्षा में पढ़ता है, 24 घंटे में 25 घंटे टीवी देख रहा, मोबाइल देख रहा। मम्मी बोलती बेटा तू कुछ तो ठीक कर। अच्छा, बोला स्विमिंग सीख लूं। मम्मी ने कहा कुछ तो कर। बाजू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। बहुत ध्यान से सुनना, आप कोच हो, आप मम्मी हो, आप पापा हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप लीडर हो, यू कैन इन्फ्लुएंस मी। और मैं आपका बच्चा राहुल हूं। आप पानी के अंदर खड़े हो, ट्रेनर मम्मी पापा आप मुझसे कहते हो, राहुल को कहता है राहुल बच्चे जंप इनटू द वाटर, आ जाना बच्चे स्विमिंग सीख। पता गारंटी मैं करता हूं फ्रेंड्स। पता है राहुल क्या बोलेगा? सर डर लग रहा है। क्यों लग रहा है तेरे को डर? मालूम नहीं। He said this, मालूम नहीं सर, लग रहा है डर। लगता है डर स्टेज फियर। Maybe he has never come here, I know। आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन लग क्यों रहा है?
जब आए ही नहीं हो तो पता कैसे चलता है कि यहां गड़बड़ होता है? हेलो, जब धोखा खाओगे, धक्का खाओगे, गड़बड़ होगा तो पता भैया वहां गड़बड़ होता है, यहाँ कांटे लगे हुए चुभता है। अब जब चढ़े ही नहीं तो पता ही नहीं है, कांटे ही नहीं है, तो फिर डर किसके लग रहा है? मोर देन 90% ऑफ द फियर इज इमेजिनरी नेचर, इट्स ऑल प्रोग्राम्ड, इट्स ऑल रॉन्ग मेंटल मॉडल्स। पता है ट्रेनर क्या बोलता है, मम्मी क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनना। नाउ यू आर गोइंग टू बी हेल्पलेस, लुक एट हाउ यू आर गवर्निंग योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ। मम्मी पापा, ट्रेनर कहता है राहुल बच्चे प्लीज विश्वास कर, विश्वास इज सच अ फैंटास्टिक मॉरल वैल्यू, हैव फेथ ऑन मी, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, आई विल बी विथ यू, आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हारे लिए हूं, आ जा पानी के अंदर, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। पता है राहुल क्या बोलेगा? मालूम है सर, डर लग रहा था। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आपका ट्रस्ट में, फेथ में, बिलीव में का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? उनको दिख नहीं रहा है? इसको कुछ कर सकते हैं? I don't know whether they're responding or I hope you are understanding, friends. Now a helpless father. हेल्पलेस फादर, क्या एथिकल ग्राउंड है? पापा तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, आपने तो इतना जीवन देख लिया, आप तो इतने अनुभवी हो, आप क्यों हेल्पलेस हो रहे हो? और ट्रेनर क्यों हेल्पलेस हो रहा है? ये राहुल इज नॉट इंटरेस्टेड। 15 इयर्स, और रियलिटी पता है क्या है? 5वें महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखाया जा सकता है, और हार्ड रियलिटी है कि 15 साल के बच्चे को अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। You and I am struggling to motivate him to learn swimming. Swimming is just an example, but there are a lot of other things. Last, देखना कितना गड़बड़ है। ट्रेनर कहता है राहुल बच्चे, ओके, तेरे को डर लग रहा है ना? लास्ट बात बताता हूँ, ये अगर सचमुच तू सुन के समझ लेगा ना, डर ऐसे चला जाएगा। तो पता है राहुल क्यों? जल्दी बताओ सर। अरे वो भी सीखना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती नहीं सीख रहा है, ऐसा नहीं है जबरदस्ती डर रहा है। He also wants to explore and wants to learn। कितने लोग स्विमिंग कर रहे हैं लेकिन मुझको भी नहीं हो रहा है। प्लीज हेल्प मी। ट्रेनर कहता है राहुल बच्चे सुन, लॉजिकली, हाँ बोलिए सर, ये स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट, तेरी हाइट 5 फुट 6 इंच, तू गलती से नहीं डूब सकता, एक्सीडेंटली ऑल्सो यू कैन नॉट ड्राउन। तेरे को 0.000, मेरे पे विश्वास नहीं है छोड़ दे, 0.0000001% भी तेरे को डर लगेगा ना, खड़े हो जाना स्विमिंग पूल के अंदर, स्टैंड स्ट्रेट, वाटर विल बी एट योर शोल्डर लेवल, तेरी हाइट 5 फुट 6 इंचेस है, तू नहीं डूब सकता बच्चे, साइंटिफिकली, रैशनली, लॉजिकली यू जस्ट कैन नॉट ड्राउन। एंड आई बेट यू, पता है राहुल क्या बोलेगा? मालूम है सर। Can I ask you a question? Mummy, Papa, trainer, leader, boss, how do you help this child? Leadership is all about influence, is to motivate the child. दुनिया को छोड़ो, नाल को छोड़ो, हमारे अंदर, हमारे नाक के नीचे 2 को ठीक कर लो। जो घर में प्रश्न पूछूं, अब उसको डर कहां से लग रहा है? क्योंकि वो डर इतना ज्यादा अंदर बैठा हुआ है, चाहता हूं क्लॉकवाइज, होगा नहीं, क्योंकि अंदर ये एक थॉट है जो मुझे कह रहा है ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो डूब जाऊंगा, मुस्कुरा के हमेशा थोड़ी ना जी जा सकता है। सच्चाई, सफाई, एथिक्स, डिसिप्लिन, वैल्यू, सिंसियरिटी, मोरालिटी, सब किताबी है, नॉट पॉसिबल। लुक एट व्हाट्स माय आइडेंटिटी, व्हाट डू आई बिलीव इन। आपके बोलने से नहीं होगा राइट 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 घूमो, ये बहुत पावरफुल होना चाहिए, एंड दिस इज सचमुच बहुत पावरफुल है। कैन आई पॉलिश इट, कैन आई टैप इट? सुबह उठते साथ 5 मिनट्स कैन यू सिट इन साइलेंस? पास्ट, फ्यूचर, ऑफिस, नाइको, घर, परिवार, सबसे हट करके 5 मिनट्स ऑफ रेस्ट, सोने वाला रेस्ट नहीं, ऐसे कॉन्शियस रेस्ट। एंड इन दैट moment of silence, can you create positive? Wow, today is going to be a great day. Nalco family is good. सुनेगा,
यूनिवर्स सुनेगा। यूनिवर्स आपको क्या चाहिए है वो नहीं सुनता है। वो सीक्रेट को लेकर काफी लोग बोलते हैं जो विश जो संकल्प करो मिल जाएगा ना, वो गड़बड़। उसमें एक स्टार कंडीशन है। आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, आप जो हो वो मिलेगा। आप अपने बारे में हो क्या, आपका सिग्नेचर क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मस्त हूं, शक्तिशाली हूं, पीसफुल हूं, वो रहने से पीस, सामने वाला भी आपके साथ पीस से बात करेगा, अदब के साथ बात करेगा, क्योंकि आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं। हो सकता है इसे हम करें, हम एग्जाम्पल और सैंपल बने और फिर बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। लास्ट चीज एथिक्स और गवर्नेंस के लिए, वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट, वैल्यूज आर कॉट। You become an example of what you want the others to do. और वो जो मैं उस कॉलेज के एग्जाम्पल दे रहा था ना, मैंने तो उसको कहा कभी भी आ जा, तेरे को 40 मार्क्स तो दे दिए। बाकी टीचर्स के क्लास में वो 7:59 को एंट्री कर जाता है, मेरे क्लास में आधा घंटे के बाद आता है, क्योंकि उसको पता है मार्क्स तो मिल गया। सर के पास तो कुछ कंट्रोल नहीं है। दिस गाय वॉकड इन रॉयली आफ्टर हाफ एन आवर, और मैं उसको कहता आजा बच्चे, चीफ गेस्ट सर बैठ तू। गेस्ट तो हमेशा लेट ही आते हैं, आजा आजा बैठ। और वो मेरे बाजू से जाकर कहता सर थैंक यू सो मच, भगवान आपका भला करे। मैंने कहा तेरे मन में इतनी दुआएं क्यों है मेरे लिए, इतनी ब्लेसिंग्स क्यों दे रहा है? बोला सर हफ्ते में एक ही दिन नहाता हूँ आपके वाले क्लास का, नाश्ता भी आपकी। मैंने कहा बहुत अच्छा बैठ। बोला सर एक छोटी सी इच्छा है। मैंने कहा बोल। बोला सर आपके जैसे एक दो और प्रोफेसर नहीं मिल सकते क्या? मैंने कहा क्यों? बोला सर हफ्ते में 2-3 दिन नहाना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रार्थना कर, विश्वास कर, मिल जाएगा मेरे जैसे दो तीन क्या बोलते स्क्रू ढीले वाले, बैठ मस्त। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? मैंने मेरे स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया, 5 मार्क्स की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखा, तू नहीं आएगा ना तेरे 5 मार्क्स तक, sorry I'm not interested in that, because that I don't believe in that, I don't trust, I'm not like that, that's not my primary signature। इस सारी दुनिया को बोलो प्यार करो, समझो, सहानुभूति रखो, प्यार से समझाओ, और मैं ही यहाँ पर 5 मार्क्स का बंदूक था। सॉरी आई विल नॉट डू एनीथिंग व्हिच आई डोंट बिलीव इन। उसके लिए मुझे कितना भी पापड़ बेलने पड़े, मेरे अंदर सहन शक्ति है, बट आई विल स्टिक टू माई डिसिप्लिन, माई वैल्यू सिस्टम। रिजल्ट बताऊं, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया, एंड द फर्स्ट थिंग दैट द बॉय डिड वाज टू मिसयूज फ्रीडम। हाँ, इससे एक चीज समझ में आता है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कहा औकात नहीं है फ्रीडम के साथ खेलने की। फ्रीडम तो ये होता है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल है, मैं टाइम पर आऊंगा क्योंकि मैं पंक्चुअल हूं। गिरिश इज इक्वल टू पंक्चुअलिटी, पीरियड, फुल स्टॉप। आप अवार्ड दो, आप रिवॉर्ड दो, आप पनिश करो, आप मुझे बेस्ट सिंसियर स्टूडेंट का अवार्ड दो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, ये सब उसके लिए नहीं करते थे। They were like this. I love cricket, period, full stop. हमने डॉक्टर कलाम के साथ 8 साल रिसर्च किया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे पास 10,000 एंजियोग्राफी रिपोर्ट है। हमने नहीं किया वो टेस्ट, वो सब DRDO करता था, बिकॉज इट वॉज डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट। बट डॉक्टर कलाम ब्रह्मा कुमारी इसके साथ किए, क्यों? क्योंकि हमने एक ही शक्ति का यूज किया। इसको यूज करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को कम कर सकते हैं, फ्रेंड्स, आपके बीपी को कम कर सकते हैं, आपके पैनक्रियास को चालू कर सकते हैं। इसका हाइपोथेसिस बताऊं? थॉट्स, ये डॉक्टर कलाम के शब्द हैं, थॉट्स आर जस्ट नॉट mere vibrations in the air, they are definite electrochemical processes taking place in your hypothalamus with physiological consequences। आप यहाँ एक नेगेटिव विचार करिए, कंट्रोल पे एंटर दबाओगे ना, प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल देगा। उसमें प्रोग्रामिंग ही ऐसा है, आपका प्रिंटर नहीं बोलेगा जा आज प्रिंट आउट नहीं देता हूं, गलत पेज का प्रिंट आउट निकाला, उसका अपना इंटेलिजेंस नहीं है दोस्तों। इसी तरह किडनी, हार्ट, लिवर, ये सब इसके प्रोग्रामिंग है। इसको प्यार से रख सकते हो। कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी? वन, फर्स्ट, कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली? नंबर 2, ये दोनों इज एट प्लेस, गारंटी मैं करता हूं समाज में यू विल बी अपराइट, क्योंकि वो आपका आदत हो जाएगा। दैट इज वॉट यू आर। यू जस्ट कैन नॉट डू समथिंग अगेंस्ट एंड बी गुड टू योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन एंड योरसेल्फ।
मैं अगर यहाँ मैं अपने पत्नी पर गुस्सा नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, अगर वो मेरा बिलीफ सिस्टम है तो मैं नालकों में भी आकर किसी पर गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा नेचर ही नहीं है। It will start, you will create a very beautiful Nalco family. You may have differences of opinion, और होना भी चाहिए। मुझे नहीं पसंद है सर क्या कहते हैं, और मैं इनकी बात से सहमत भी नहीं हूँ। हमारा डिस्कशन होता है 1 घंटे का, मैं अपने बात पर अड़ा हूँ, सर अपने बात पर अड़े, फाइन, पीरियड, नो कंक्लूजन ड्रॉन। लेकिन सर सदा आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। ये मेरा वैल्यू सिस्टम है। Beyond the discussion, he is elder to me. He is the boss, and I'll follow him. पर उस बात में मेरा डिफरेंस हो सकता है। मेरा सर के साथ मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं हो सकता। मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है? आप सब बड़े हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड क्या ना हो, बड़े सदा आदरणीय हैं। मैं उनको प्यार से बात करूंगा, वो मेरा सिग्नेचर है, पीरियड। और इसका फायदा बताऊं, मैं बहुत शांति से सोता हूँ, मेरे को डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है आपको है, बट द बॉडी स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग। लास्ट एक्सरसाइज, एक वैल्यू सिस्टम, ठीक है? करें, दोनों हाथ ऐसे करिए, इस हाथ की उंगलियों को मुस्कुराइए, वेरी गुड। चेहरा मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे कर लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए चेहरा। हाँ, आजू बाजू वाले को देखिए मुस्कुराते हुए, वेरी गुड। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दीजिए। अब ये हाल हो गया, इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथ में। यू आर फैंटास्टिक ऑडियंस। कैन आई रिक्वेस्ट, कल दोपहर के 2 बजे तक ऐसे ही रहना, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, जबरदस्ती से यहां से ऐसे जाना। मुझे पता नहीं यहाँ का हल्को, हाँ बजाइए ताली। कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली। कुछ मम्मी लोग बैठी हैं, उनके लिए बोल देता हूँ। शाम को घर जाना, देखना बच्चा अभी भी टीवी देख रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ठीक है? उसको क्रिकेट पसंद है, उसको जाके कहना बेटा मुझे पता है स्कूल से आने के बाद तूने किताब को हाथ नहीं लगाया है, प्लीज टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। जब आप ऐसे कहोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, पूरा CT स्कैन, MRI स्कैन करके बोलेगा मम्मी लगता है आपको कोविड हो गया है। अरे आज मम्मी भड़क नहीं रही। 1 बार कहना, 2 बार कहना, 3 बार कहना, 4 बार कहना, आधा घंटे तक कहना। प्रश्न, बच्चा मानेगा? प्यार से कहते तो मानते हैं? समझ में आ रहा है, ठीक है ना? आपके साइलेंस से बहुत कुछ समझ में आता है, कहाँ मानेगा? प्रश्न, वो 5वीं में पढ़ने वाला 10 वर्ष का बच्चा टीवी देखने की गलत जिद कर सकता है। मैं मम्मी पापा बड़ा समझदार, इतना जिंदगी देखा, 24 घंटे तक खुशी की जिद नहीं कर सकता। प्लीज बताइए, वो पावरफुल है या आप पावरफुल हो? वो समझदार है या मैं समझदार? मैं मोर वाले जगह बोलूं, और हम उनके जीवन को सुनहरा बनाने की, अपने जीवन को बनाने, मेरा फंडामेंटल स्ट्रेंथ और उसको पकड़ के कितना रख सकता हूँ। फिर भी वो नहीं मानेगा ना, तो प्लीज ऐसे नहीं कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले। 2 घंटे के बाद बेटा तो टीवी नहीं बंद करेगा ना, कोई बात नहीं, कल बताऊंगी 2 बजे के बाद। ऐसे नहीं कहना तब तो शांति मिलेगी, बच गए, अब रिलीफ मिलेगा। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? सदा मुस्कुराना इतना डिफिकल्ट हो रहा है, यस और नो? और कभी कभी मैं कहता ना सदा मुस्कुराइए, तो बोलेंगे लोग पागल समझेंगे। तो फिर नॉर्मल पता क्या है? आपके बच्चों को नालको की मम्मी, नालको का पापा, ऑफिसर पापा नहीं चाहिए। स्माइलिंग, स्माइल इज अ वैल्यू, कॉन्फिडेंस, ब्यूटी, पॉजिटिविटी। आपके जीवन का प्रॉब्लम में आप मुस्कुराता हुआ देखकर आपका बच्चा बोले मम्मी मेरे को आपके जैसे बनना है, मेरे को कल मैथमेटिक्स का पेपर है, घबराहट हो रही है, क्या करूं? और अगर आप भी रोते हो
तो वो अपने फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को फोन करेगा, क्या करूँ बता, क्योंकि मम्मी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, मम्मी इज नॉट एन एग्जाम्पल एंड सैम्पल। छोटा सा रिक्वेस्ट है, कल दोपहर के 2 बजे तक आज से नहीं करना है, मतलब खुश रहना। अभी घर जाना, दोपहर का भोजन मान लो आप घर में करते हैं, मैडम ने, वाइफ ने बनाया दाल रोटी चावल सब्जी, आप पति मैं पति, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आलू गोभी की सब्जी में मिलाया, फर्स्ट बाइट, आई इतना ज्यादा नमक। दोस्तों आपको क्या करना है? वाइफ को बुलाना, सुनती हो जरा इधर आओ, वो किचन से क्या लेकर आओ, रोटी चाहिए क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही आ जाओ। सब्जी लाओ क्या? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे ही आपकी पत्नी बाजू में खड़े हो, आत्मविश्वास, वैल्यू है, कॉन्फिडेंस, गट्स, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी से आलू गोभी का सब्जी का कटोरा, नमक वाली सब्जी का कटोरा हाथ में उठाना, आत्मविश्वास से पत्नी की आंखों में देखना। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ, आप उड़िया भाषा में बोल देना। वाइफ को देख के कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा क्योंकि मेरा पेट बढ़ रहा है थोड़ा सा, डॉक्टर ने कहा था, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, लास्ट 1 मिनट? वो मैडम ने मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोला, बिहेवियर, इंटरनेशनल, सब बकवास है दोस्तों। नमक आपको हिला रहा है, नमक इज एजिटेटिंग यू, नमक। आप इसको चैलेंज कर सकते हो, अब ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। क्या मतलब है आप इंटरनेशनल IIT और ISR, कोई मतलब ही नहीं है उसका। व्हाट्स योर ग्राउंडिंग ऑफ योर लाइफ, व्हाट्स योर सिग्नेचर? नमक कैन एजिटेट यू। और किस पर गुस्सा कर रहे हो? पत्नी पर। और इसका रिपरकशन, लास्ट बात, मेरा छोटू बच्चा पीछे बैठ के पढ़ाई कर रहा है और मैंने फॉर सम रीजन मैंने गुस्सा कर दिया, मान लो पता नहीं क्या खाना बनाया, कहीं और का फ्रस्ट्रेशन इन पे निकाला। ऐसा कोई सब्जी बनाता है क्या? मेरे को ब्लड प्रेशर है, तुमको पता नहीं है? इतना नमक टेस्ट करके नहीं देती हो क्या? कभी कभी निकाल देते हैं हम अपना फ्रस्ट्रेशन। और पीछे बैठकर मेरा छोटा वाला बेटा पढ़ाई कर रहा है, कल उसका इलेक्ट्यूशन कॉम्पिटिशन है स्कूल में। पता है वो क्या पढ़ रहा है? नारी सशक्तिकरण। गारंटी करता हूं आपका बच्चे को इलेक्ट्यूशन में फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा एंड यू विल बास्क इन द ग्लोरी कि मेरा बेटा इतना अच्छा भाषण करता है। लेकिन गारंटी करता हूं आपका बच्चा फ्यूचर में कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा क्योंकि पापा नहीं करते। इंटरनेशनल विमेंस डे मना लीजिए जितना मनाना है, इट्स ऑफ नो यूज। और इसीलिए समाज का इतना डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि आज मीडिया, समाज में नेटफ्लिक्स, ये सब इतना इजी एक्सेसिबिलिटी, और उसमें क्या है, फिल्टर नहीं लगाते। उल्टा बताऊं, आपने कहा भाई तो आई लव यू, तू खा ले, मैं अचार के साथ खा लूंगा। आपका बच्चा को पता है आइडिया क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट ही इज इंटरप्रेटिंग। डूब जाएगा नहीं। महिलाएं ऑलवेज टू बी रिस्पेक्टेड। इतना नमक वाली सब्जी खा करके भी पापा उन पर गुस्सा नहीं करते। इट इज नॉट अबाउट दैट है, मेरे पापा करते हैं, मैं पापा के जैसा हूं। कल की डेट में मेरे स्कूल में लड़कियां हो, कलीग हो, माँ हो, वाइफ हो, बहू हो, सास हो, रिस्पेक्ट करना ये सिद्धांत है, ये वैल्यू है, ये एथिक्स है, और मैं उसको गवर्न करके रहूंगा। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, करके दिखाया है, भाषण करके नहीं सिखाया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई रेस्ट माई केस, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। या प्लीज सर, एक क्वेश्चन है, आई जस्ट टेक 1 मिनट। यस, पूछिए। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इंडिकेट करता है रिलेशनशिप को। इजी करिए। पहले आप साइकिल चलाते होंगे, आज शायद कार चलाते हैं। क्यों गाड़ी खरीदी? वंडरफुल। ऐसे ही कंफर्टेबल बनाइए, इजी करिए अपने आप को, गुड करिए, गुड पापा, गुड ब्रदर, गुड स्पीकर, गुड पैसेंजर, गुड ड्राइवर ऑन द रोड, हर चीज गुड गुड गुड। एंड लास्ट, थोड़ा गहराई में, सत्यता के आधार पर जीवन जीना ही आध्यात्मिकता है। डर असत्य है, शक्ति। और अगर उसको और डिटेल में बताऊं, आत्मा ज्ञान और परमात्मा ज्ञान। आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो पावर आता है, सारी दुनिया पावर है। ये ऑडिटोरियम चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एक एनर्जी है सर, वो एनर्जी के द्वारा मैं राइचियस होकर जी सकता हूँ, दूसरों को इंस्पायर कर सकता हूँ। और वो तब आता है, शरीर होगा ना तो डर आएगा, पापा बोलोगे ना तो आपको गुस्सा आएगा क्योंकि बच्चा सुन नहीं रहा और मैं पापा हूँ। इसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पोजिशनल लीडर कहते हैं।
मैं पापा हूं तो बच्चा क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि पापा डांटेंगे। आप पापा नहीं हो, आप शांत स्वरूप एक एनर्जी हो, शक्तिशाली एनर्जी हो, मुस्कुराता हुआ एनर्जी हो। इसको धारण करके मुस्कुराता पापा बनिए। प्ले द रोल ऑफ अ गुड डैड, प्ले द रोल ऑफ एन इजी डैड। हम जानते हैं गुस्सा बुरा है, लेकिन हम गुस्से से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। दिस कॉम्प्लिकेशन इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। सो व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम स्पिरिचुअल एनर्जी, ओरिजिनल। गन्ना मीठा होता है, मैंने नहीं बनाया गन्ने को मीठा, हिंदू धर्म ने नहीं बनाया गन्ने को मीठा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, मशीन लर्निंग ने, बिग डेटा ने नहीं बनाया गन्ने को मीठा। वो वैसा ही है ओरिजिनली में। आप और मैं भी वैसे ही हैं, लेकिन हमने अक्वायर कर लिया बहुत कुछ चीजें, गुस्सा, चिंता, भय, अशांति, और सोचते हैं यही नेचुरल है, यही नेचुरल है। ये जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर, ये समझ और उसके आधार पर चलना ही आध्यात्मिकता है। हमारा ब्रह्मा कुमारीज में एक 7 डेज कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी कॉलोनी में ही है, हमारा दीदिया है, प्लीज जाकर उसको समझिए। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया था तो मैंने भी यही किया था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये संस्था, मेरे को लगता था क्या बकवास करते हैं लोग। बिलीव मी, एवरीथिंग इज सो साइंटिफिक, इट्स सो बिहेवियरली एप्ट, and once I started following it, it made my life easy, it made my life good, it made my life successful, अंदर से भी, संबंधों में भी, professionally also. Thank you so much for that question. ठीक है? Before I sum up, may I request our ED Amanda sir to come on to the dais, please. As said, you have pointed out to inculcate, I love my work. At the end of the day, one counts to be happy and peaceful. Your signature should be unique by adopting standards and values. Your ethics is healthy for your life, family, and yourself. Amen. मुस्कुराइए। सर हमारी तरफ से भी एक छोटा सा, मैम वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर सर। आइए क्या रिएक्शन आप पीछे हम खड़े रहिए प्लीज। थैंक यू। सर आपको तहे दिल से मैं 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, फिर भी बोलेंगे कि मेरे पति नहीं बोली, लेकिन हम तहे दिल से ये बोलना चाहते हैं। खुशियाँ भरी इस महफिल में, खुशियाँ भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है, आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर ये कार्यक्रम खास हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर for being ethical and standards. Thank you very much, sir. And I also would like to thank our ED Amanda sir, who has motivated us to conduct this program in a very big manner. And I also thank all the Narconians who have joined in online mode. And I also thank all the all the persons who are in the auditorium to have patiently and listening and will follow sir's it should be forever. And thank you very much sir, and thank you all the business department, HND department and system department particularly for taking this program into a good level. Thank you very much. Have a good day.